is not only going to be informative, but it is also going to bring in to our minds a lot of insight about what we do not want to see or what we do not see in our children. So oh God, there's so many people joining in. Nice. So I think they are logging in, Chandrima. So yeah. I'm sure that we are going to have 100 people in no time in this room. Yeah. In the meantime, I don't think we're the only people who should speak. We would also love to be, to hear out what people think about it, and if they have any look forward to from this session. What do you think, Bhaskar? What do you think, Pragati? Sure. Wouldn't it be a good idea to hear it out from our members? If what are they looking forward to, if they have anything in their minds, and whatever they are thinking inside their mind of, अच्छा चलो इस session से ये जानने को मिलेगा. So absolutely, I think we should Chandrima. hear it out from a couple of people. Yeah. In fact, it would be nice if people even put it in the chat box, if they have any questions as I'm speaking or anything on their mind, they can just put it up, and I would love to take it definitely at the end of the session. But baat karte samay bhi agar lage, I'll try and incorporate it. It's not a problem. Definitely. Chat box आपके लिए खुला है. You have an open mind, and please ask your questions, state your mind, and we make sure that we come back to you in the later part of the session. Bhaskar, you want to take it over to ask members of their look forward tos? Sure. Like Pragati said before we start off this session, you must be finding a lot of difficulties, which you don't have an answer. So for that, what are the challenges that you are facing? If you can put it in the chat box, then Pragati might address it post meeting. So please feel free. This is a family, BNI, we are all together here. So don't hold back. Whatever you have in your mind and heart, just write it down in the chat box. We are all familiar faces here, familiar names, familiar face. So a session is successful where we have a both-way communication. Okay, while we are waiting, I'll have a nice game for everyone, while people are joining in. I want you to close your eyes. 1 minute के लिए आंख बंद करके सोचिए, अभी आपको क्या चाहिए? What is it that you desire? Anything. And let's just write in the chat box कि अभी ऐसा क्या है कि अगर कोई mental genie आपको मिल गया है, so what is it that you are going to get? What is it that you really desire? Let's just write it in the chat box. Yes. A wedding worth 50 crores. Wow. Yours or somebody else's, Bhaskar? Of course, I'm a wedding planner. This is what exactly I'm desiring right now. Perfect. And yes, Aditya desires good health for my children and family. So true, Aditya. It's there on everybody's mind right now. Yes, Zainab, even I want a holiday. Trust me. And a good vacation. Yes, Shretu. Peace and happiness around me, Vivekji. Absolutely. 50 lakhs per month. MacBook. Okay, Ananya, I hope your parents are watching and they get it for you. I want a company worth 1,000 crores. Yes. See, but this is the beauty of our mind, Can you see? It can dream big. Just sitting here for a second, agar humko koi bol raha hai, what is it that you desire? Can you see how imaginative our mind is? There are no barriers, right? In the real world, हमें कितने barriers मिलते हैं. So let's see कि आज के session में, this is exactly what I want to take all of you. I wish I was a genie. Then I would just wave my wand and say, Tathastu. But they say once a day, मुंह पे लक्ष्मी रहती है.
So I hope all of you who've written your desires, I hope you get it. I genuinely hope so. So on that light note, over to you, Bhaskar, after we are done with the introductions, and I will start my session formally. Thank you, Pragati. Chandrima, would you like to take the lead? Yes. Well, thank you so much, Bhaskar and Pragati. In fact, this was so nice. आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा. So I want people, till the time they're joining, there are 43 of us right now, and there are many people who are joining in the queue. So I would want people from here to come and tell us that what is it that you're looking forward to? What is that something that you want, that particular topic to be addressed, or that particular, discussion point to be included? आप क्या चाहते हैं? आपको पता है कि यहाँ क्या डिस्कशन होने वाला है. आपको पता है यहाँ पे बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेके हम ज्यादा कंसर्न हैं. हम ज्यादा कंसर्न हैं कि उनको किस तरह से एंगेज रखें. These are the points that we stumble around nowadays during these times. So what are the other factors, or what are the other things you think is a challenge and that should be addressed? So anyone, please raise your hand, or you can unmute and go. Hi Chandra. Question. Hi Sangeeta, good evening. How have you been? You are on mute. If you can please unmute yourself. Yeah. Hi. Hello everyone. Good evening. Hi Chandrima. Thank you for this opportunity. Yes, Pragati. Hi. I have a question because I deal with a lot of kids, So I have a kid in my house also. So the only problem which I see, a major problem is they are locking themselves too much in this pandemic time. They're not expressing what they're going through. In our age, like when people used to know how many friends we have, what is our lifestyle, what is our world all about. Now we don't know what they're going through, how many friends they have, who is their best friend, what they like, what they don't like. They don't want to express. So how to motivate them to express and what is going inside them, how to share. They don't want to share with their family members for sure. So how to go about it? Sangeeta, this is a very nice question you have asked me. Now, communication. How do you communicate? Yes. So what I feel, Sangeeta, is बच्चे आजकल क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम लोग आज पेरेंट्स के जैसे उनके पीछे पड़ जाते हैं. इफ यू सी, हम लोग जब बचपन में थे, आई नो आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, हम लोग क्या पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे. आप पेरेंट्स से बेटा पढ़ाई कर लो 1 घंटा. देयर वर सम डिलिजेंट मदर्स जो बैठ के पढ़ाते थे. द चाइल्ड नेवर फेल्ट कि हर समय मॉनिटर्ड है. आज पेरेंट्स स्नैपचैट टाइम मॉनिटर करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि तुम फोन पे मत रहो, बट खुद फोन पे रहते हैं. नाउ द थिंग इज, अगर यस त्रिशा, आई कैन सी यू स्माइलिंग. तो होता क्या है ना, हमें लगता है कि हमारा काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी जनरेट करता है, लेकिन बच्चों के लिए उनके फ्रेंड से मिलना, सोशल कोहेसिवनेस जो बोलते हैं, बहुत जरूरी है. सो दे सी अस एंड दे डू द सेम थिंग. सेकंड, जिसको हम लोग आइसोलेशन बोलते हैं, दे आर डिजिटलाइज्ड. आई मीन व्हेनेवर आई हैव टू टाइप समथिंग एंड माय चाइल्ड हैज टू टाइप, शी इज मच फास्टर. तो उन्हें डिजिटल वर्ल्ड से ही दे कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स. सो व्हाट इज द वे आउट? इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा डेंजर है, पेरेंट्स का अनफाउंडेड नहीं होता है, एडिक्ट्स हो जाएंगे, आंख खराब हो जाएगा, एंड ऑल्सो सोशल आइसोलेशन के बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं. तो इसमें पेरेंट्स को क्या करना है, मैं इसको एक गांधारी सिंड्रोम बोलती हूँ. हाँ, एक ऐसी पट्टी अपने लिए रख लीजिए और आंख पे बांध लीजिए. क्या है सबसे ज्यादा, गांधारी क्या थी, हस्बैंड के को दिखता नहीं था तो उसने आंख में पट्टी बांध ली, जितना देखना है उतना ही देखो, क्योंकि मोटो क्यों था, आपस में पीस रहे. सो आई अर्ज पेरेंट्स कि सबसे पहले ये चीज जानना है कि घर का एनवायरनमेंट पीसफुल रहे. सो कई चीजें जो बच्चों की आपको नहीं पसंद है, प्लीज उनको चेक मत करिए. व्हाट दे नीड इज अ वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट. और अगर वो कुछ करे, खूब प्यार से उनको अपने बगल में बिठाइए और बोलिए कि आपको कुछ बॉदर कर रहा है क्या बेटा, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट. इस तरह से अगर हम लोग बोलेंगे ना, सो द होल फैमिली इज क्लूड इनटू इट कि पीस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो इसमें मैं बोलती हूँ गांधारी विजन रखिए.
सब चीज में मत देखिए, इतना फियर है ऑल अराउंड कि हम लोग क्या करते हैं, जब डर जाते हैं तो छिप के बैठ जाते हैं। तो बच्चे भी है, बोल नहीं पाते हैं, बट वो लोग छिप के अपने रूम में हैं. So what I would urge parents is right now, hug them a lot more. Physical expression of hugs is very, very important. In fact, clinical psychology में बहुत सारा research है कि थोड़ा सा if anybody is hugged, जो टच हम लोग बोलते हैं बहुत जरूरी है, और हम लोग भूल जाते हैं बच्चे को प्यार से सहलाना. एंड इवन दे टेल अस, मिडिल स्कूल के बच्चे, कि मम्मी क्या कर रहे हो, पापा आप क्या कर रहे हो. बट उससे क्या है ना, टच से हमारे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होती है. सो आई अर्ज पेरेंट्स की बी लविंग टू देम एंड शो देम दैट यू लव देम, एंड ट्रस्ट मी, उससे बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं. Yes, that makes sense. Pragati, thank you so much for this insight. Most welcome. So with this, I guess we can go ahead and start the session because it's already 4:17. So thank you so much for joining today and to understand how we can fight the various challenges that our children are facing now. So as we say in BNI, good morning, BNI. Today, we are here to have an open discussion on mental health of children, prime focus being on young parents, discussion on the challenges being faced by young parents during lockdown. Today, joining us, we have Ms. Pragati Sureka, who is a speaker for the evening. She is a licensed clinical psychologist working in the realm of mental health since the last 15 years. Apart from her dual qualification in clinical and occupational health psychology, she has professional credentials from Harvard Medical School, Boston, the Psychometric Center at the University of Cambridge, and Beck Institute, Philadelphia. Today's session would be moderated by Mr. Bhaskar Das and me on the other side. The flow of the session would include a warm introduction about the topic, followed by a session by Ms. Pragati Sureka, followed by closing quote by the moderators, and then the forum will open for your questions. So stay tuned, cause हम सहते तो हर रोज हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता. तो चलो आज बात करते हैं. Over to you, Bhaskar. Thank you, Chandrima. Now, today's topic is extremely crucial, and we have been part of this struggle, or rather challenge, to keep our children up and running during these challenging times. COVID-19 pandemic and lockdown. Okay, no issues. I guess Bhaskar is having some kind of technical issue. I'll take it from there. COVID-19 pandemic and lockdown has brought about a sense of fear and anxiety around the globe. The phenomenon has led to short-term as well as long-term physiological, psychological, mental health implications for children in particular. It has been indicated that compared to adults, this pandemic may continue to have increased long-term adverse consequences on children and adolescents. In young children, the pandemic and lockdown have a greater impact on emotional and social development compared to that in the grown-ups. Younger children demand more attention of their parents. They need their parents' physical presence and need to engage in more indoor play related activities with them. Sometimes due to work from home scenario, it is not only that's exactly what today's talk, it's not only becomes difficult, but also challenging to keep up to the wants of the children. And that's exactly where today's talk show is going to help us. Here we would not only discuss the challenges, but would also find solutions to these situational hazards that we are all into. With this, I would like to hand it over to Pragati Sureka to take it forward from here. Miss Pragati Sureka, for you guys. Thank you very much. Yes, thank you very much, Chandrima. और आप लोग सब जो यहाँ हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगी, लैंग्वेज बैरियर नहीं है. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगी. एंड द होल पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज कि बहुत इजी वे से हम लोग इस पैंडेमिक में कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं. सामने वाला एडवाइस खूब देता है, लेकिन जब एक यंग पेरेंट
अपने बच्चों के मेंटल स्टेट को देखता है तो बहुत तकलीफ होती है, जब वो स्क्रीन टाइम बहुत देख रहे हैं। कई बार ग्रैंड पेरेंट्स का बात नहीं मानते हैं तो भी उन्हें तकलीफ होती है। कई बार इरिटेशन बढ़ा हुआ रहता है, तो उस समय क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है, घर का काम बढ़ गया है, सब कोई के पास स्पेस की कंस्ट्रेंट रहती है। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या है ना, व्हाट आई बिलीव सबसे पहले जरूरी है कि एक तो हम लोग ये जो मिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ है उसको हम लोग एब्सोल्युटली डिकोड कर लें। ये समझें कि मेंटल हेल्थ है क्या, ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे अगर गूगल करें तो उनको भी लगेगा डिप्रेशन है। आप खुद गूगल करोगे तो आपको ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे बच्चे का मेंटल हेल्थ तो ठीक है। जैसे संगीता ने अभी कहा, बच्चा रूम में घुसा हुआ है, कहीं कोई डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं और कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे। हम लोग बोलते नहीं है लेकिन समवेयर हमें लगता है कि भाई कहीं आइसोलेशन तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ। तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमारा इमोशनल वेलबींग, हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग और हमारा सोशल वेलबींग। अब पैंडेमिक के समय क्या है, सोशल वेलबींग एब्सोल्युटली क्रैश कर गया है। हम लोग किसी से मिल नहीं सकते हैं। एंड वाइल स्क्रीन टाइम पे ठीक है हम लोग देख जरूर लेते हैं, लेकिन एक जो हमारी ह्यूमन नीड होती है टू बिलोंग, दैट इज नॉट गेटिंग मेट। लेकिन उस समय हम अपने मेंटल हेल्थ का कैसा ध्यान रखें कि हाउ इज इट दैट आई कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। आज का नॉर्मल स्ट्रेसर क्या है कि पैंडेमिक है, बाहर नहीं जा सकते हैं, न्यूज ऑफ डेथ इज ऑल अराउंड। फिजिकली भी सम ऑफ अस आर मोटिवेटेड कि भाई सुबह उठ के एक्सरसाइज कर ले या छत पे घूम ले या स्पॉट जॉगिंग कर ले, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस इट हैज गॉन फॉर अ टॉस। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एग्जैक्टली हमें अपने मेंटल हेल्थ के बारे में या अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बिकॉज दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं और वो क्या एक्ट कर रहे हैं। जैसा हमने हमेशा देखा है कि बच्चे जब अग्रेसिव एक्ट करते हैं या इरिटेटेड एक्ट करते हैं तो हम लोग उनसे भी ज्यादा येल करने लग जाते हैं, हमें भी गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ा चिल्लाते हैं तो हम ज्यादा चिल्लाते हैं। बच्चे क्या है, अगर बोलते हैं खाना अच्छा नहीं बना है तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जो मिल रहा है वो खा लो, देखो अभी कितनी दिक्कत है। उस समय क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करती है। एक हम में सेइंग है साइकोलॉजी में कि आप सबसे पहले अगर देखें बच्चे का कोई बिहेवियर है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, सो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज टू मिसबिहेव विद द चाइल्ड। आप जो है एकदम रोल मॉडलिंग करके आप बच्चे को सिखा सकते हो कैसे वेल बिहेव करे। मैं आपको बताऊं, एक एब्सोल्यूट सिंपल तरीका है मिररिंग। कि अगर बच्चा बोल रहा है मम्मी आपने ऐसे क्यों खाना बनाया, आप जो है चाहते हैं वो धीरे बोले, आप अपना टोन कर, हाँ बेटा तुम कुछ बोल रहे थे क्या, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बच्चे का टोन है नीचे आ जाएगा। कई बार क्या है, हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, हम भी उसको बहुत कामली हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो सबसे पहले क्या है ना, हमें स्मार्ट रोल मॉडलिंग करनी है। अगर हम बच्चे को हम लोग बोलेंगे तुम धीरे बोलो, वो बिल्कुल वो काम नहीं करेगा। सो वन वे दैट यंग पेरेंट्स कैन डील विद इट इज स्मार्ट रोल मॉडलिंग। कि द चाइल्ड इज एक्टिंग अप बिकॉज समवेयर बच्चे को क्या हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है। एंड इस सिचुएशन में क्या एंजाइटी फील होना नेचुरल है? एब्सोल्युटली नेचुरल है। बिकॉज एंजाइटी क्या है, इट इज द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा। तो अगर आप देखिए, एंजाइटी जरूरी है। क्यों एंजाइटी जरूरी है? जब एग्जाम होता है, जब भी आपने पढ़ाई की है, बिना एंजाइटी मैं किसी को नहीं जानती जिसने पढ़ाई की है। यस और नो? जब हमें लगता है कि हाँ भाई एग्जाम आ रहा है, तो हम लोग स्ट्रेस को क्या है, यूस्ट्रेस बना लेते हैं। उस एंजाइटी से हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो कभी भी हो, चाहे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है या आपको जॉब इंटरव्यू है या आपको स्पीच देना है, तो हमें हल्का सा डर और नर्वसनेस होता है। तो एंजाइटी पर से बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे धूप में हम लोग जाते हैं, पसीना आता है, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि देखिए, और एंजाइटी के कॉमन सिम्टम्स क्या है, थोड़ा नर्वस फील करना, थोड़ा टेंस फील करना, कभी कभी हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, कभी कभी पसीना आ जाता है और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वीक फील करते हैं। तो अगर आप देखो तो ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स है, राइट? बट एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में फर्क है। जहां ये सब सिम्टम्स कॉमन है, इसके कारण जो है हमें
इसको मैनेज करना है भाई। जैसे अगर हम लोग सुबह एक्सरसाइज करें, पसीना तो आएगा ही, चाहे एसी चले नहीं चले, अच्छा पसीना मीन्स अच्छा वर्कआउट हुआ है। तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाता है? डिसऑर्डर तब बन जाता है कि एक्सेसिव फियर या वरी है। जब आप देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल सो नहीं पा रहा है, रात रात भर सो नहीं पा रहा है, या खाने का पैटर्न डिफिकल्ट हो गया है, बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा है, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, देन इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर. When it is an anxiety disorder, that is when you need to be concerned. Otherwise, normal anxiety के लिए आपको क्या करना है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। 10 मिनट बच्चे के साथ आपको बैठना ही बैठना है, और आपको बहुत रिलैक्स्ड वे में बच्चे को बोलना है कि बेटा तुमको किस चीज से टेंशन हो रहा है। हम लोग क्या है ना, इमोशनल होने से डर जाते हैं। इमोशनल मतलब कि इधर कोई चिल्ला रहा है, उधर कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, ये नहीं। हमें इमोशंस को हैंडल करना सीखना है, यू नो। सो फील ऑल योर इमोशंस, बट उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तो उस समय क्या है, बच्चा नॉर्मली उसको कैसे एक्सप्रेस करता है? जोर से बोलता है, कुछ पटकता है, दरवाजा पीटता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको इनविटेशन मान लेते हैं उससे लड़ने के लिए। ये नहीं करना है। हमें ये देखना है कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, उससे बात करिए कि बेटा तुम्हें क्या लग रहा है। सबसे पहले देखिए बच्चा क्या हंग्री है, क्या बच्चा थका हुआ है, क्या चैलेंजेस है। यू नो, अगर आप 10 मिनट बच्चे के पास, मैं आपको बोलती हूँ जो भी बच्चे को पसंद है, 10 मिनट आप बैठिए। उस समय आप फोन पे बात मत करिए, दूसरा कोई काम नहीं करिए, जस्ट पूछिए कि बेटा क्या बात है। यू नो, आपके घर में आपकी नीस हो, आपकी छोटे बहन हो, कोई भी हो, अगर बच्चे से 10 मिनट रोज हम लोग बात करते हैं ना, सो दे विल लर्न टू फील देयर फीलिंग्स, एंड दे व्हेन दे टॉक अबाउट इट, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, और उनको ये नहीं लगता है ये जो इनअप्रोप्रिएट वे में डिस्चार्ज नहीं हो। और मान लीजिए कि बच्चे ने आपको गुस्सा कर भी दिया, उससे पूछिए कि तुम्हें अच्छा लगा क्या ऐसे करके। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बोलेंगे कि नहीं मम्मी मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, और या फिर बोलेंगे आप भी तो ऐसा करते। तब आप बोली हाँ मैं भी करती हूँ, लेकिन बाद में ना मुझे रियलाइज होता है ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इतनी प्रेशराइज हो जाती हूँ, या मेरे पे इतना स्ट्रेस है, काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं नहीं चाह के भी गुस्सा हो गया। तो तुमको क्या चीज स्ट्रेस कर रहा है? तो जब आप अपने गुस्से को एक्सप्लेन करोगे जिस तरह से आप एक्सप्रेस करते हो, तो बच्चे को भी इन्विटेशन मिलता है कि कोई भी फीलिंग बैड नहीं है। आज आप देखो तो एंगर है, शेम है, गिल्ट है, हैप्पीनेस है, सब नॉर्मल फीलिंग्स है, उसके बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। सो अगर हम लोग उसको दबाते हैं तो हम लोग वो उस प्रेशर कुकर के जैसे हो जाते हैं जो बिना विसल के होता है, एक दिन बूम से फूट जाता है। अगर आपकी कुकिंग करते हो तो आप देखोगे। तो हमें क्या करना है, टाइम टाइम से विसल होने देना है। लेकिन स्मार्ट विसलिंग क्या है? रोज 10 मिनट बच्चे के साथ बैठे, उससे बात करें कि बेटा क्या अच्छा हुआ, अपने चैलेंजेस शेयर करिए कि यू नो आज हमको इसकी बहुत टेंशन हो रही है, मैं फ्रेंड से नहीं मिल पा रही, एकदम इरिटेट हो जाती हूँ, खाना पूरे दिन बना रही हूँ, कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, कोई काम में हेल्प करने नहीं आ रहा है। तो आपके जो चैलेंजेस है, यू नो, बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे आर गुड नेचर्ड। अगर आप उन्हें समझाएंगे, अगर आप उनको कॉन्डिसेंड नहीं करो कि तुमको तो कुछ नहीं समझ में आता है, अगर आप जेन्युइनली उनसे वैसे बात करोगे जैसे वो समझते हैं, यू विल बी सरप्राइज वो कितना हेल्पफुल हो जाएंगे। एंड ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में ट्राई किया हुआ है, एंड ऑल्सो प्रोफेशनली जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मेनी ए टाइम्स जो पेरेंट्स सबसे ज्यादा मेरे पास लेके आते हैं कि बच्चा इतना टीवी पे है, पैंडेमिक के पहले भी लोग लाते थे, यू नो, कि कोई चीज पे फोकस ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो कई बार मैं पूछती हूँ उनसे, तो एक बच्चे ने मुझे कहा था, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, यू नो, और उसकी मदर मुझे लेके आई थी, बोले कि नेशनल्स में अभी जाएगा, इसके लिए उसके लिए, लेकिन क्या है फोकस नहीं है। जब मैंने बच्चे से बात की तो बोले कि सुबह हमको कोई लेने के लिए नहीं जाता है, मुझे ड्राइव करना अलाउड नहीं है, और मम्मी ड्राइव करती है तो मम्मी ड्राइव करते हुए फोन पे अपना लगी रहती है और मुझे रोकती हूँ। तो जब मैंने बात की उसकी मदर से, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे तो काम है, ऐसे अग्रीड, लेकिन बच्चा तो आपको देख के सीखेगा। सो कई बार इस तरह के सिंपल चेंजेस से ना आप अपने बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप कर सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे कि जो सिम्टम्स है कि वे आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, और अगर बच्चे का कोई भी चीज है जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, तो आपको क्या है, तब किसी की हेल्प चाहिए, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। जैसे अगर आपको अचानक फीवर हो जाता है, हम लोग पहले काढ़ा ले लेते थे सब कुछ, आजकल कोविड है तो हम लोग क्या तुरंत डॉक्टर से चेक जरूर करते हैं सिम्टम्स के लिए। उसी तरह से आप कब आइडेंटिफाई करोगे कि मेंटल हेल्थ इशू को
किसी प्रोफेशनल की जरूरत है। अगर कोई फिजिकल सिम्टम्स है, फिजिकल सिम्टम्स क्या हुए कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा सो रहा है, पूरे दिन सो रहा है और रात में भी सो रहा है, लॉट ऑफ टाइम्स आजकल क्या है, बच्चे दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। राइट है रॉन्ग है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ये पॉपुलर कल्चर हो गया है कि अब, और इस समय क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज एक साथ में हम लोग पीसफुली रहे, और ये सब जो बिहेवियर इश्यूज हैं थोड़ा सा टॉलरेंस के साथ हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा। बट ऐसे फिजिकल सिम्टम्स कि जब आप देखिए बच्चे को पसीना आए जा रहा है बिना कारण से, एसी चल रहा है, या बिल्कुल बच्चा खाना नहीं खा रहा है, या एक्सेसिव खा रहा है, सोने का पैटर्न गलत है, तो इस तरह के अगर कोई फिजिकल सिम्टम्स या बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखे, इसका मतलब है कि किसी से अगर आप सजेशन ले लो तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो आप अब बच्चों को कैसे हेल्प करोगे कोप करने के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी है टॉक टू देम अबाउट सम प्रो सोशल वर्क। ये प्रो सोशल वर्क क्या हुआ, बड़ा फैंसी टर्म है, मतलब ऐसा चीज जिससे कम्युनिटी के लिए वो कुछ कर सके। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, आप बोलिए कि देखो क्या तुम कोई अवेयरनेस कैंपेन करना चाहोगे जहां लोग जो है अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, किसी को नेबरहुड में कोई हेल्प चाहिए, जैसे कितने बच्चों को मैं जानती हूँ आजकल वो अडल्ट्स के साथ जो है बहुत हेल्प कर रहे हैं, इंटरनेट का योग, कई बार खाना पहुंचाना है, नेबरहुड में कोई आंटी है, कोई अंकल है जिनको कोई देखने वाला नहीं है, तो इस तरह से उनको अगर बोले कि कुछ ऐसा एक काम करो बेटा जिसमें तुम्हें लगे कि पैंडेमिक के समय तुम भी हेल्पफुल हो रहे हो। अभी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, जैसे कई बच्चे क्राफ्ट सिखा रहे हैं ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स को, फिर जो भी मनी इकट्ठा हो रहा है चैरिटी में दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि देखो उनमें एक तो फियर नहीं जनरेट होता है और उनमें एक अबंडेंस की फीलिंग आती है, क्योंकि लेट्स फेस इट, अभी कैश की सबको दिक्कत हो रही है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो अफेक्ट नहीं हुआ है। तो बहुत चीजें खरीदना पेरेंट्स के लिए नहीं पॉसिबल है, बट चैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ना बच्चे बहुत अपने आप को अबंडेंट फील करते हैं। कुछ नहीं हो, छत पे थोड़ा दाना ही रोज दे दिया, तो उससे एक बच्चे को लगेगा कि लुक आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई कम्युनिटी, ये बहुत जरूरी है। फिर the next step that you need to do is discuss social isolation with them, कि भाई ऐसा क्या लग रहा है कि बेटा are you missing your friends, अपने फ्रेंड्स से कैसे टच में रह रहे हो, रिलेटिव्स अगर कहीं और रहते हो वीकली जूम कॉल कर लिया, तो इस तरह से अगर डिस्कशन होना, और ये भी कहना कि भाई आई एम ऑल्सो मिसिंग टॉकिंग टू पीपल, जब मैं बाहर जाती थी थोड़ा तैयार होती थी। इनफैक्ट मैं आपको आज अपने लिपस्टिक का सीक्रेट बताती हूँ। 1.5 साल से क्या हुआ, जब मैं सेशंस लेती थी, जब फर्स्ट टाइम जब पैंडेमिक चालू हुआ तो लोग बेड से निकल ही नहीं पा रहे थे, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, अगर ब्राइट लिपस्टिक लगा के बैठ जाओ तो पीपल फील स्पेशल, कि देखो हमसे बात करने आने के लिए भी शी इज लुकिंग नाइस एंड ब्राइट। तो कई बार वो भी प्रो सोशल एक्टिविटी हो जाता है, पीपल फील कि यू हैव टेकन द एफर्ट, तो थोड़ा सा बाल बनाना, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाना, थोड़ा सा स्माइल करना, तो इस तरह से अगर हम लोग करें ना, वी कैन बीट सोशल आइसोलेशन। रीड समथिंग टुगेदर ना, आजकल बच्चे रीड नहीं करते हैं। अगर आपके फैमिली में सबको रीडिंग का आदत है तो मैं रेकमेंड करूंगी कोई भी किसी की बायोग्राफी रहे, अच्छी रहती है, छोटी छोटी किताबें। या अगर बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, मीम्स ही पढ़ते हैं, आजकल बच्चे मीम्स बहुत पढ़ते हैं, और मीम्स जो है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था, तो मैंने एक ट्रिक सीखा है, मैं अपनी डॉटर को बोलती हूँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलती मम्मी आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझा दो ना प्लीज। तो बच्चे जब समझाते हैं ना, दे फील इंटेलिजेंट, दे फील इंपॉर्टेंट। Most of the time we want to tell them what to do. So my recommendation is once a day read something that they want to read. उनके लेवल पे आ जाइए, मे बी आपको कोई सेंस उसमें दिखेगा नहीं, बट ask them to explain to you. जब इस तरह से हम लोग डील करते हैं ना, so we are able to cope with the pandemic better. And बच्चे, they are the best things in our life, right? They add so much joy. चाहे अपने बच्चे हों, चाहे नेबरहुड में बच्चे हों, चाहे फैमिली मेंबर्स के हो, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें कुछ स्किल्स सिखाएं। सो एक स्किल जो बहुत जरूरी उनको सिखाएंगे, डेली जर्नलिंग। रोज शाम को, मैं आपको भी रेकमेंड करती हूँ आप लिखिए, ये एक ऐसा इमोशनल एबिलिटी रिसोर्स है जिससे इमोशनली आप एकदम स्ट्रांग बनते जाएंगे। 3 things that I am grateful for, बच्चों को हैबिट में डाल दीजिए रोज लिखने का। एंड कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए कि भाई आज बहुत अच्छा मैंने एक फ्लावर देखा, आज टीवी पे ये अच्छा देखा, आज मैंने हेल्दी खाना खा लिया। तो इस तरह से जब हम लोग बच्चे से बात करते हैं तो क्या होता है
बच्चे जो है एक अंदर में अपने बहुत स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। और इससे क्या है, जो ये एडवर्स इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 का, अभी क्या है, बहुत सारे बच्चे बहुत शाय हो गए हैं, दूसरों से बात नहीं कर पाते, उनकी सोशल स्किल्स कम हो गई है, स्क्रीन डिपेंडेंसी भी बहुत हो गई है, एक डर का भी एटमॉस्फेयर है। लेकिन आपको इसका पॉजिटिव साइड देखना है कि क्या करें, कि स्ट्रेस को कैसे हम लोग यूस्ट्रेस बनाएं, कि भाई ठीक है स्ट्रेस्ड आउट तो है, लेकिन इस सिचुएशन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं। अगर एग्रेशन फील कर रहे हैं, मैं एक पंचिंग द पिलो एक्सरसाइज रेकमेंड करती हूँ बच्चों के साथ। एक कोई भी पिलो आप साथ में ले लो और दोनों साथ में ऐसे करके पिलो पंचिंग करिए, तो जो एग्रेशन है वो भी निकल जाता है एंड साथ में यू कैन हेल्प ईच अदर। तो इस तरह से डेली हैंडलिंग ऑफ मेंटल हेल्थ केयर ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप जो है रोज ब्रश करते हो, उसी तरह से आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी रोज ध्यान रखना है। ये नहीं कि आज जरूरत नहीं है और कल जरूरत है। यू नीड टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और आपको एज पेरेंट्स जो है उन्हें ऑप्टिमिज्म दिखाना है कि आई नो सब ठीक होगा, देखो हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आई एम श्योर हम लोग ठीक रहेंगे, आज का दिन जो है हमने जैसा भी है, वी आर अलाइव टुडे। तो कई बार वर्ल्ड वॉर 2 की कई स्टोरीज होती हैं, अगर आपको खुद इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल ने एक किताब लिखी थी। भाई इस तरह की कुछ स्टोरीज अगर आप पढ़ें अपने आप और सिंपल वे में बच्चों को बताएं तो बहुत हेल्प होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी अभी है, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बोलना होगा, कि 2 चीजें जिनके लिए ग्रेटफुल हो, ये अगर आप उनसे रोज डिस्कशन करो और साथ में हंसेंगे, तो क्या है, ओवर टाइम आप देखेंगे कि इस पैंडेमिक के बाद एज अ फैमिली वी हैव इमर्ज्ड मच स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलिएंट। रेजिलियंस क्या होता है? एबिलिटी टू बाउंस बैक। कहते हैं ना, जो डर गया वो खत्म हो गया। तो हमें खत्म नहीं होना है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए हम लोग कभी प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट एट द सेम टाइम इसके बाद जो है हमें एक चीज तो समझ में आ गया है कि हमारी नीड्स बहुत बेसिक है। रोटी कपड़ा मकान अगर है तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन एंड टिप टू पेरेंट्स कि कलेक्टिवली पैनिक से निराश नहीं होना है, खूब शांत मन से और एकदम यही सोचना है कि आपस में हम लोग पीसफुल रहे और यूनाइटेड वी स्टैंड। तो यूनाइटेड रहना है और डिवाइडेड वी फॉल। कम बोलना है और थोड़ा स्माइल ज्यादा करना है। अगर आप ये सिंपल टिप्स अप्लाई करो ना, तो जैसे डेली ब्रशिंग करने से किसी के मुंह में स्मेल नहीं आती, उसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ, एंजाइटी रहेगा, फियर रहेगा, वरी रहेगा, बट वील बी एबल टू मैनेज इट। So I hope, Chandrama, I have not overshot your time, and this is my presentation. It's not about time at all. First, because हम जब किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सो जहाँ पे 5 मिनट अगर ज्यादा भी लग जाए तो इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि फिर यू आर एड्रेसिंग अ चैलेंज। हम यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं कि आई कैन टेक लेस। I think Chandrima is having some connectivity issue. But let me tell you, Pragati, it was a wonderful session indeed. Wonderful. The best part is it made our question in mind. And today we are a little more clearer about the whole cloud. Most of us didn't have a clear idea on this topic, but we have so many questions. I'm sure this is going to open a lot of doors, for the parents to take care of their children in a better and a smarter way. So we would like to, be thankful to entire insight that you have given us on the whole topic. So I'm sure that the entire viewers right now are having a lot of questions in their mind, isn't it, guys? So few of questions that we have shortlisted. So we would be picking them up from the chat box, if it's okay with you, Pragati. Absolutely. So we have an interesting question. We have how to develop the bridge between children and grandparents. One very effective way, जैसे हम लोग ब्रिज कर सकते हैं ना, कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड खोजना है। मान लीजिए बच्चे को रसगुल्ला पसंद है, ग्रैंडमदर को रसगुल्ला पसंद है, एकदम सिंपल वे। तो कॉमन फूड आइटम्स खोजना है जो सबको पसंद है। बॉन्डिंग ओवर फूड इज अ वेरी गुड वे टू गेट देम।
कि बच्चे को अगर एनकरेज करें छोटे छोटे चीज, अगर 5 साल का है, आलू छील के आलू चाट बनाओगे क्या, दादी के लिए दादा के लिए बना लो। तो छोटे छोटे जेस्चर्स से इफ वी एनकरेज चिल्ड्रन टू रीच आउट टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स ना, क्या है, क्विड प्रो क्वो है जो हमारा BNI का फिलॉसफी है, गिवर्स गेन। तो बच्चों को अगर स्मार्टली यही बोले कि बेटा आई नो कई बार दादा दादी कुछ बोल देते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ करो एंड देखिए उसका क्या रिजल्ट होगा। दीज थिंग्स यूज्ड टू बी वेरी नॉर्मल, हमारे इंडियन कल्चर में ये सब इनग्रेन थी। बट आजकल क्या है ना, हम लोग एज पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे तो सुनेंगे ही नहीं, और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि भाई वो लोग सो स्ट्रिक्ट है। परहैप्स मैं ये नहीं बोलती कि रॉन्ग है, लेकिन जब अगर आप गिरी गए हो कढ़ाई में तो अब अपने आप को रोस्ट नहीं होना है, उसी में ही जो है इसी सिचुएशन में आपको एक अच्छी डिश बनानी है। तो आपका घर है, आपका पीस है, आपको मैनेज करना है। तो दोनों को कॉमन ग्राउंड लाने के लिए ना सबसे पहले बच्चों को एनकरेज करिए। यूजुअली मैंने देखा है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा कार्ड बच्चा बना दिया, थोड़ा सा कुछ कर दिया, तो ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो फील नाइसर। और अगर दादा दादी की बात नहीं समझ में आए, आई एनकरेज चिल्ड्रन जाके खूब टाइट से उनको एक हक दे दो, दादी प्लीज थोड़ा सा गाल खींच दो, दादाजी को बोल दो। हम लोग ये भूल जाते हैं। तो बचपना एक ऐसा बाइंडिंग फैक्टर है जिससे कई चैलेंजेस जो है आप देखेंगे खत्म हो जाएंगे। It was really very nicely explained by you, Pragati. Amazingly explained. ये तो छोटी छोटी आलू चाट और रसगुल्ले की चीज है, ये तो हम हर दिन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे अपनी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, जहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी चीजों का ध्यान रखती हैं। So really very well explained. Now I want to come to the next question, which is put forward to by Ritu Jhawar. How to curb the anxiety of the parents? What helps is again to curb anxiety और anxiety disorder। एक तो anxiety आपको ना मानना पड़ेगा, जैसे गर्मी में कड़ी धूप होगी ही, एनीथिंग हैपेंस, तो आपको एक तो मानना होगा कि एंजाइटी आएगी। उसको मैनेज करने के लिए जैसे आप डेली ब्रशिंग करते हो वैसे आपको 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर लिखना होगा। डेली जर्नलिंग करिए। सेकंड टिप है डीप ब्रीदिंग। जब आपको लगे बहुत एंजाइटी हो रही है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो कहीं भी, लेकिन 10 टाइम्स अगर आप ऐसे करोगे ना, फोकस ऑन द ब्रेथ से, यू विल बी एबल टू टेक होल्ड ऑफ द माइंड। एंजाइटी कहाँ होती है? एंजाइटी इज इन द फ्यूचर, आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट पे तो नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट वे टू फोकस ऑन द प्रेजेंट इज कैचिंग होल्ड ऑफ योर ब्रेथ, सो दैट रियली रियली हेल्प्स। ओके, Thank you so much, Pragati. And we have a very interesting question right now. How is not going to school? How is not going to school affecting children who are reaching adolescence? Unfortunately, it is going to have deep-rooted impact because बच्चे जो है, children learn a lot of social skills, team leadership, and connecting with each other in schools. तो long-ranging impact तो उसका रहेगा। What we can do is mitigate the effect, या उस effect को हम लोग कम कर सकते हैं by actually talking to them, by being inclusive with them, doing activities that they feel like fun. lot of times मैं elder teenagers के साथ deal करती हूँ, तो parents बोलते हैं, कई बार उनके report में आता है बहुत extrovert है, मिलनसार है, तो like हमसे तो बात नहीं करता है, फ्रेंड्स के साथ खूब बात करता है। क्यों नहीं करता है? मैं बोलूंगी आप अपने चाइल्डहुड पे जाओ, जो आपको डांटता था, जो आपको चेक करता था, क्या आप उसके सामने बात करते थे? आप बंद रखते थे मुंह। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपसे बात करें, तो आपको उनके लेवल पे बात करना है और थोड़ा सा कम चेक करना है। अगर आपको एक्सप्लेन भी करना है तो सैंडविच टेक्निक में बोलती हूँ, पहले 2 अच्छी चीजें बोली, आज तो तुमने ये बहुत अच्छे से किया, वाव कितने अच्छे लग रहे हो, फिर धीरे से बोल दीजिए, ये जो तुमने किया ना, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, कोई और तरीके से। थोड़ा सा टोन सॉफ्ट करके जेंटल आइज से अगर आप बोलोगे तो क्या है, बच्चे क्रिटिसिज्म भी ले लेंगे और आपसे जो झिझकेंगे नहीं, दे विल वांट टू कनेक्ट विद यू। सो आई रेकमेंड कि बिकॉज this will adversely impact them, because going out and socially meeting others really enhances their social skills. थोड़ा सा आप जो है उनसे वो उनको जोन दे दो where they feel comfortable interacting with you. I agree. I totally agree. The sandwich thing is very nice. 2 अच्छी बातें करके अगर आप एक क्रिटिक
सामने लाते हो तो डेफिनेटली उसका असर उस तरह से नहीं होता, एंड चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड. Yes. And they I'm open also up to us. They don't yes, stop talking. yes, that is the biggest challenge that parents face. No matter, everyone has children at home. किसी की मासी की है बेटी, किसी की दीदी की बेटी है, भैया की बेटी एक्सेट्रा, बेटा है, जो भी है. So we all face these kind of issues क्योंकि बच्चे बात नहीं करते, चुप हो जाते हैं. क्या हुआ है बेटा बोलो, तो वो बोलते नहीं. So I guess the sandwich policy is going to help. And we would take another question from I have a very interesting question here which I want to answer, if I may. Yes, for sure. Please go ahead. So there is a question here. Should we allow children to cheat if backbenchers are cheating and scoring more than them? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आम के पेड़ पे अमरूद नहीं उगता है. तो अगर आप चीटर नहीं हो, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो आपका बच्चा भी चीटर नहीं बनेगा. रहा अभी ऑनलाइन एग्जाम्स में बुक खोल के देना चाहिए या नहीं, हमें एक चीज रियलाइज करना पड़ेगा कि वर्ल्ड ओवर एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज आजकल नॉर्म हो गया है, और वो हमारे आईएससी और आईसीएससी और सीबीएसई पैटर्न में नहीं है. लेकिन अब जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो आ रहा है, उसमें ना वी विल नॉट हैव स्ट्रिक्ट स्ट्रीम्स. सो अगर आप जो है चीट नहीं करते हो, आपके वैल्यू सिस्टम अच्छे है, तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा. लाइक आई सेड ना, अभी जो है पैंडेमिक में थोड़ा सा गांधारी अप्रोच रखना है. बच्चे जब एग्जाम लिख रहे हैं, एक बार उन्हें छोड़ दीजिए कि व्हाट यू डोंट नो विल नॉट मैटर, एंड इफ यू आर नॉट अ चीटर, योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी फाइन. एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. It does. And why only for children? ये गांधारी अप्रोच इनफैक्ट बहुत जगह काम आता है, जिसको हम बोलते हैं ignorance is bliss. Yes. In beautiful English language we can say ignorance is bliss. तो अगर कुछ हो रहा है जहाँ पे आपको नहीं बात करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, तो उसको फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसको वेरी कामली नेग्लेक्ट करना ही अच्छी बात होती है. एंड स्पेशली राइट नाउ क्यों जरूरी है? क्योंकि ना अभी न्यूज ऑफ डेथ ऑल अराउंड है, फियर ऑल अराउंड है. एंड यू नो, अगर हम लोग बच्चों को ज्यादा टोकेंगे, वो रूम में है वो बेटर है रादर देन बाहर जाके घूम रहे हैं. क्योंकि इंस्टेंसेस हुआ है, बच्चे गए हैं ग्रुप में और पूरे ग्रुप को कोविड हो गया है, 20-25 प्लस. सो राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, मे बी जो नॉर्मल समय जो चीजें राइट रॉन्ग है, अभी वो टाइम नहीं है. अभी इज द टाइम ऑफ शेयर्ड कैमराडरी. हंसते हुए बोलते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए जिंदगी. अभी हमें एक दिन, वन डे एट ए टाइम, उसी पे ही फोकस करना है. Agree. ये जो आपका ये the entire process of blindfolding yourself is like from the famous movie we have watched, Three Idiots, where they said ignore kar. So it was nicely explained in the movie, and that leads me to the next question. So we know how to, now we know better how to take care of our children, what are the things that we should do as young parents. But when is the right time that we should seek for professional help? Number one. And number two, if we think that my kid needs a professional help, how to break the news to my kid? Firstly, what I recommend is, when you see, normally clinically बोला जाता है 2 weeks से ज्यादा अगर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, या खाने का पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, या बिल्कुल कोई सोशल पैटर्न में आप देख रहे हो कि बच्चा अपने जैसा है ही नहीं, तब आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की जरूरत है. एंड अभी जो है पैंडेमिक इज नॉट द टाइम, बिकॉज अभी क्या है, लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हेल्प्स विद चिल्ड्रन इज टॉकिंग टू देम. बिफोर यू सीक प्रोफेशनल हेल्प, आई रेकमेंड आप 1 week कोशिश करो बच्चे से. ये जो मैंने 10 minute टेक्निक जो बोला है कि रोज 10 मिनट आप उनसे बात करो, साथ में हंसे, प्यार से उनको सहलाइए. आप ये 2 weeks तक करके देखिए. अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं हो रहा है, देन आई रेकमेंड यू सीक प्रोफेशनल हेल्प. अभी लकीली क्या है, बहुत सारे लोग फ्री काउंसलिंग ऑफर कर रहे हैं. मेरा इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, विच आई डेफिनेटली शेयर विद यू चंद्रिमा, जो हमारे सारे मेंबर्स को दे सकते हैं. सो अगर किसी को भी कुछ भी लग रहा है, फोन उठाइए, एक्सपीरियंस काउंसलर्स से बात करिए. दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ. जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, कितना भारी भरकम टॉपिक आप लोगों ने चालू किया है, बट अगर आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या है, दे आर ट्रेन्ड टू ब्रेक इट डाउन इनटू इजी मैनेजेबल culture specific context. So इसीलिए
अगर आपको लगे आपको बहुत सारे अभी फ्री काउंसलिंग रिसोर्सेज है, कुछ भी है, I urge all of you to pick up the phone and seek counseling help. Lot of local facilities are offering, and we definitely from Cornash are offering. तो अगर आपको चाहिए, if anyone's interested, please just reach out. And between 10 to 10 आपको expert advice free of cost मिल जाएगी. And YouTube पे you can follow my channel also, जहाँ daily tips I put on mental health, वो आप देख सकते हो. You can even Google other experts, how to handle children and all that. So जैसे हम लोग daily कोई serial देखते हैं या कोई music सुनते हैं, उस तरह से if we make it a part of our routine कि भाई 3-4 मिनट टिप हम लोग देख लें, we will be able to identify and manage issues. Correct. True, for that matter. With this, we come to the next question, which is a very valid question that says, how to make children a bit health conscious and engage them in exercise and related activities, as physical activities have reduced drastically. One is, these days, online is a very good way to go. You have, again, Zumba classes, yoga classes, you have kickboxing classes, everybody, there's so many, never have so many free resources been available online. तो जो भी एक्टिविटी बच्चे को पसंद है, उसमें आप उनको एनकरेज करिए. आपको खुद अपने बच्चे की, अगर छोटे बच्चे हैं तो नेचुरली खुद वो नहीं कर सकते हैं, तो आप देखो ऐसा क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो. कुछ नहीं हो, टीवी चालू कर दीजिए, साथ में जो म्यूजिक चला करके साथ में डांस ही कर लीजिए पूरा फैमिली, तो एक एंजॉयबल टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, साथ में हंस भी लेंगे और फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी. सो सिंपल थिंग्स लाइक दिस से बच्चों की फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान रख सकते हैं. Very true. We have an interesting question. Like when I was a kid, I used to enjoy fighting with my siblings. Mm-hmm. But fighting with siblings too much has become a challenge. So we have a question by Sakshi Singhania. How to control siblings bullying each other? फर्स्टली, घर में कौन किसको बुली करता है, आप ये देखिए, बच्चे ऐसे ही बुलिंग नहीं सीखते हैं. so, आपको बड़ा अजीब लगेगा कई मेरी चीजें, बट जो बच्चे जो है ना, जो देखते हैं वही सीखते हैं. तो मेरा वही रिकमेंडेशन है, जो और किसी को बुली कर रहा है, अगर आप उसको कंट्रोल कर पाओ तो बच्चे भी अपना करेंगे. अदरवाइज क्या है, जेंटल स्पीकिंग, एक्सप्लेनिंग टू देम, सामने में नहीं. नो वन लाइक्स टू बी चेक्ड. अगर लेट्स से एक बच्चा बुली कर रहा है, हम लोग नॉर्मली क्या होता है, दूसरे के सामने बच्चे को बोल देते हैं, रेहान उसके साथ ऐसे मत करो, ये अच्छी बात नहीं. तो बच्चा क्या है, ये उसको ना अटेंशन मिलता है, तो बच्चा क्या है, नेगेटिव बिहेवियर के लिए अटेंशन खोजने लग जाता है. माय रिकमेंडेशन इज, अगर आप देखेंगे, बच्चे को अलग से लेके जाइए, जो भी एज रहे हो, बोलिए तुम्हें अच्छा लगा क्या ऐसे करके, वो बोलेगा हाँ. फिर पूछिए कि तुमने क्यों ऐसा किया, वो आपको रीजन भी देगा, और कई बार रीजन वैलिड भी होगा. और फिर आप बोलिए कि अगर मैं तुमको ऐसे करूं तुम्हें कैसा लगे. सो कम्युनिकेशन, अगर बुलिंग भी है, यू हैव टू लिटरली ब्रेक इट डाउन टू देम, कि अगर मैं तुम्हारे साथ करूं तो कैसा लगेगा, अगर पापा मेरे साथ करें तो कैसा लगेगा, क्या ये राइट होगा. लेट देम यूज देयर इंटेलिजेंस. जब बच्चे को हम लोग डायलॉग में एंगेज करते हैं ना, सो इवन बुलिंग वी कैन हैंडल. और फिर अपने एक्सपेक्टेशंस भी उनको बोलिए कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम प्लीज ये काम ये मत करो, क्योंकि देखो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बीच में आओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और फिर मुझे दुख हो जाता है. क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुझे दुख हो, या मैं तुम लोग का नहीं ध्यान रखूं. तो इस तरह से व्हेन वी एंगेज देम इन डायलॉग ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज बिहेवियर्स कम डाउन. मोस्ट नेगेटिव बिहेवियर क्या है, कॉल फॉर अटेंशन होता है. पेरेंट्स को ये समझना है कि कहीं अगर उनको पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलती है ना, तो वो लोग नेगेटिव अटेंशन से हमारा ध्यान खींचने का कोशिश करते हैं. सो वी रियली हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट, कि दिस इज अ क्राई फॉर अटेंशन, सो लेट मी नॉट गिव नेगेटिव बिहेवियर अटेंशन. साइड में ले जाके कोने में हम समझाएं. I agree. As a child, even I wanted my parents to take it separately and scold me अकेले में, सबके सामने नहीं. तो उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स के सामने बहुत ज्यादा inferior feel होने लग जाता है. I agree. As a child, even I have faced such situations, and we hope and believe that after what we share, after what you shared today, we will of course check on our behavior onto our children. Coming to the next question. Mr. Vijay Mehta has asked a very crucial question, very sensitive question. If we have adopted a child
at which age and how should we share this with the child? Sorry, can you please repeat it? Yes. If we have adopted a child, at which age and how should we share this information of adoption with the child? See, this again is very context specific. You know, different literatures say different things because it depends, ek to kitne family members hai, who can tell the child, how will the child take it in? You know, so usually people say by the time they enter middle school, bata dena chahiye because they get information from here and there. Some people prefer saying it from the beginning only. So it depends on your own context, how you want to deal with it. Now, adoption is a topic which I would prefer to take it specifically and separately, you know, because I personally feel ki it's a very specific context. Sometimes I have parents जो late teens में भी आते बोलते अभी तक बच्चे को नहीं बताया लेकिन अब बताना जरूरी हो रहा है, क्या करें नहीं करें, तो बहुत लेट कर दिया तो कई बार बच्चे बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं. आपको वो मूवी लायन याद होगी, उसमें क्या होता है, द चाइल्ड इज अडॉप्टेड, मोमेंट द चाइल्ड फाइंड्स आउट the child wants to go back to India and look for birth parents. So usually I recommend talk to a proper qualified social worker या mental health professional. Family का जो context है उसको समझाइए, उनसे समझिए बच्चे का क्या behavior है, and then disclose to the child when you feel your child is ready to hear. Thank you so much, Pragati. Well, we have another question coming from one of our members' daughters. Her name is Twisha Sharma, and she is daughter of our very own Krishna Prasad Sharma. And she asks that, is it normal to ask parents for a yes day where they would just say yes? I think it's very normal, but whether they will agree or not, unfortunately, Trisha, I can't say yes to that. That is your parents' decision. But what a wonderful concept. If your parents agree, I think that would be wonderful. Thank you. So, Pragati, I personally want to know, we have experienced a very serious question that I'm going to ask. You know, there are tendencies in the children that if they get something, if we parents agree with them, or they have based on these various reasons, they grow this tendency of self-harming themselves. So when you find out that they have this tendency or develop it, what should a parent do? You need Then to and there ask for professional help, or can we Absolutely. do something about it? Absolutely. Because unfortunately, when it comes to self-harm, there are a lot of incidents that have happened which parents cannot manage themselves. Because whenever I have dealt with children with self-harm, there is usually a history of some sexual abuse trauma, some kind of physical abuse trauma, or something that the child is unable to deal with, or something the child has seen which the child should not have seen. So I strongly recommend to seek a proper clinical psychologist or a counseling psychologist, help someone who has 6 to 8 years in training of mental health for this, because self-harm is something, you know, it's something which requires proper clinical intervention. And after that, once it's managed, then parents can of course take over and look into it. Okay. So Chandrika, Yeah. Well, I have a question from Nupur Chokhani. How to mentally encourage parents as children? The same way as we encourage children, how do we encourage parents? What can we give since we have always received from them? What doesn't kill you makes you stronger. So if you have gone through today, balanced your finances, balanced your health, your fears, and looked after your family members, tell yourself that. Okay. So we have another question coming up. How to, from Rajiv Kabra, how to reduce screen time for children? That unfortunately has to be role modeled. And also you need to have dialogue about it. You know, pehle only IT professionals spent 10, 10, 12, 12, 14, 14 hours in front of the screen. But now if you see anyone who's working, including you and me, we are in front of the screen. So, you know, for that to reduce, it's like the whole
psyche in the house has to be mapped up. Even if there's one family member who's using it, unfortunately it becomes very difficult to tell children कि वो use कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं use कर सकते हो क्योंकि तुम गेम खेल रहे हो और वो काम कर रहे हैं. बिकॉज आजकल क्या करते हैं हम लोग, काम करने के बीच में भी व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं फ्रेंड्स को, कोई जोक चेक कर लेते हैं, कोई नेटफ्लिक्स देख लेते हैं. सो योर चाइल्ड इज द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट व्हेन इट कम्स टू यू. उसे कोई डिग्री नहीं चाहिए, उसे कोई एज नहीं चाहिए. अगर उसने एक बार भी देख लिया, बीच में आपने कोई जोक पढ़ लिया या आपने स्माइल कर लिया, they take it as license ki they can also do the same. Very true. Over to you, Bhaskar. So as you see, we are having less questions coming up in the chat box. That means Pragati has been answered to all our queries. So it has been a great session. I'm sure our viewers are loving it, loving the experience. So this is the time I would like you to conclude by saying the main 3 points in a priority list. What should be point number 1, 2, and 3 to be a good young? Point number 1 is laughter. Laugh with your children every day. कोई भी जोक पे आपको हंसना ही हंसना है. Second is you have to write the gratitude journal together. 3 things that you are grateful for. ये आपको करना है. थर्ड इज सम माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइज. जैसे मैं बोलती हूँ डीप ब्रीदिंग आप कर लो, या कोई म्यूजिक लगा करके साथ में डांस कर लो. सो समथिंग दैट कीप्स यू इन द मोमेंट. ये 3 चीज अगर आप करोगे, आप देखेंगे आपके फैमिली का मेंटल हेल्थ बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्टेड रहेगा. So on that note, I would like to say thank you to everyone. Yeah, in fact, this is the time of the session that we come to the conclusion. And I would like to Yes. say something. Can I say? Yes, please. I have a question. Like Pragati ji said that like the parents are 24/7, parents are working or either on phone or on laptop, right? Now a child who is turning a teenager or is in the age where they understand what she said, that in the middle of the work we are doing something or the other, and they come to know. And nowadays children, they tend to explain, express themselves that mummy aap to ye kar rahe ho, aap mujhe kyun mana kar rahe ho, right? So how to deal with this? Like, I understand that we shouldn't be doing this. Along with that, how to, if we are busy in our work in laptop, how to engage them in other ways, that how to deal with this situation, I would like to know. I think what is really important, like I said now, there is no easy way out. What children see us doing is what they will do. I wish I could say it differently, because when we talk from a mental health perspective, you can't suppress children. Again, I go back, you may say it's a very light statement, but आम के पेड़ पे अमरूद नहीं उगेगा. अगर आपका फोकस जितना है, आपका बच्चा भी वैसे ही होगा. अगर आज आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, and you are doing really, really good things, you have to trust God and you have to trust your upbringing. कि आज शायद उनको बहुत चीजें realize नहीं हो रही है, but if they have seen you, they will do the same things. मैं आपको ही पूछूंगी कि if you look at it, कई चीजों में you will see you are like your mother. A lot of things you saw your mother do, you are behaving in life the same way. Do you or do you not behave like that? So children see us and they learn a lot of life skills. So right now, especially in the middle of the pandemic, raising an issue on screen time will lead to greater challenges and greater issues. It can result in aggression, which they don't like because they're already dealing with social isolation. It can result in ugly fights. It can result in the child going into depression because they feel that is how they are connecting. So at least till the world normalizes, I personally have always recommended parents कि इस issue को at least 2021 में रेक मत करिए. अगर वो लोग बेसिक सोशल प्रोटोकॉल्स मैनेज कर रहे हैं, जो हमारा सोशल आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स है, इट्स वेरी टफ फॉर देम, एंड बेसिक डिसेंट बिहेवियर है, तो 2021 में जस्ट गिव देम स्पेस टू बी. Thank you, Pragati. Thank you so much. And still,
I can see there are a lot of raised hands, but as you know, guys, Pragati is on a tight schedule, Yeah. and we have to close the session here because I'm sure there are a I'm lot of sorry. questions. I'm sorry to interrupt here, but since she is a member of BNI and we are all privileged to have her any moment, we can all make sure if we have questions, we can do a one-to-one with her Absolutely. and understand, our children better for that matter. Yes, please, Bhaskar. For that, Pragati, all you need to do, kindly share your contact detail in the chat box so that Absolutely. members would find it Yes. easy to connect with you. And I And in am the part of meantime, BNI Ideal. So even on BNI Connect, you are going to find me there. I'm always there. And in the meantime, I'm definitely sharing my number. And even on Facebook, on Insta, and as well as YouTube, if you leave me a comment, I'm always there, if you don't have my number. So all the best, everybody. I really wish you good mental health. And remember, take firm hold of the nettle. Don't be scared in parenting. I think you are doing a fantastic job and you will continue to do so if you just listen. Have an issue, give ear to it. Let your intrinsic wisdom come to the forte when you are raising children. So raise them with love and compassion and be loving and compassionate to yourself. So all the very best. And I would like to sign off on that note. Bye, everyone. Thank you. thank you, Pragati. Thank you, everyone, for attending and participating in today's talk show. And I'm sure this is going to make all of us evolve. The right word is evolve as a better parents, and positively, it's gonna create a lot of impact on our children's mental health. But before we leave, we would like you to do a small exercise, a little exercise. Kindly write down in the chat box what is your major takeaway from today's session. So before we leave, kindly write down one major takeaway that you have really learned and you're going to adapt